So अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द हिस्टोलॉजी ऑफ बोन, और हिस्टोलॉजी ऑफ बोन में हमने देखा था कि विच टाइप ऑफ सेल्स आर प्रेजेंट देयर इन in the bone. We have seen osteoprogenitor cells, we have seen osteoblasts, osteoclasts, and osteocytes. Now today our topic is histological classification of bones. Okay, I have told you that कि जो bones होती है, जब मैंने आपको anatomy of long bone बताया था तो मैंने वहाँ पे आपको बता दिया था कि diaphysis जो है that is made up of compact bone, and जो epiphysis होता है that is made up of जो है spongy bone. अब बेस्ड ऑन द माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, एक्चुअली जब हम माइक्रोस्कोप में बोन टिश्यू को जो है स्टडी करते हैं तो वहाँ पे हमें जो है certain types of bones जो है हमें दिखते हैं. Okay, and based on that microscopic structure we divide these जो है bones into mature bone and immature bone. Okay, तो मैच्योर बोन में वही दो टाइप्स है जो मैंने आपको कहा था, कॉम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन. फाइन. कॉम्पैक्ट बोन को हम कॉर्टिकल बोन भी कहते हैं और स्पॉन्जी बोन को हम कैंसलस बोन एंड ट्रैबिक्यूलर बोन भी बोलते हैं. एंड कॉम्पैक्ट बोन को यूजुअली हम कहते हैं लैमिलर बोन, लेकिन कुछ बुक्स जो है वो इन दोनों को ही, मैच्योर बोन को ही दूसरा नाम देते हैं लैमिलर बोन. ओके, तो अब जो immature bone है that is also called as woven bone. Okay, so we have two major types, mature and immature, and under the mature bone we have the compact bone and we have the spongy bone. Now let's discuss these one by one. Fine. So compact bone, when we talk about compact bone, this compact bone is actually made up of microscopic layers. Okay, microscopic layers, and those layers are called as lamellae. Okay, one is called as lamella, many are called as lamellae. Okay, इसीलिए जो है इस compact bone को या दोनों को, compact and spongy bone दोनों में ही lamellae present होते हैं, but there is the difference in the arrangement of these lamellae. Okay, from compact to spongy. अब दोनों को ही लैमिलर बोन कहते हैं. स्पेशली हम कॉम्पैक्ट बोन को लैमिलर बोन कहते हैं क्योंकि इसमें जो है ये बना हुआ होता है माइक्रोस्कोपिक लेयर्स से, जिनको हम कहते हैं लैमिले. Okay, and there are three types of layers which has been recognized. First is circumferential lamellae, then second is concentric lamellae, and third is interstitial lamellae. Okay, and these three types of lamellae actually makes the compact bone. Fine. Then when we talk about first the circumferential lamellae, it is actually around the entire outer and inner circumference of the shaft. I hope you remember the anatomy of long bone. लॉन्ग बोन में जो डायाफाइसिस वाला जो एरिया था, डायाफाइसिस को मैंने आपको कहा था कि दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉडी और शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन. ओके, अब ये जो शाफ्ट लॉन्ग बोन होता है, इसके अराउंड जो है एंटायर आउटर एंड इनर सर्कमफ्रेंस. आउटर सर्कमफ्रेंस मीन्स जस्ट इनसाइड द पेरियोस्टियम. ओके, प्लीज कॉन्सेंट्रेट, प्लीज पे अटेंशन. पेरियोस्टियम जो मैंने आपको दिखाया था डायग्राम में, पेरियोस्टियम के अंदर is the outer circumference of the long bone, shaft of the long bone, and inner circumference हो गया just outside the endosteum. Okay, endosteum was covering the medullary cavity. Okay, endosteum was covering the medullary cavity, और इस endosteum के just बाहर, okay, बाहर की तरफ, that there is the inner circumference of the long bone, and periosteum के just अंदर there is the outer circumference of the long bone. Fine. अब ये जो दोनों जो circumferences है, दोनों जो circumferences है, outer circumference and inner circumference, इसके around जो है arrange होता है ये layering, that is lamellae, which is called as circumferential lamellae. फाइन. और ये सर्कमफ्रेंशियल लैमिले जो है
ये डेवलप हो जाता है ड्यूरिंग द इनिशियल बोन फॉर्मेशन। जब पहले बोन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है तो इनिशियल फेज में ही ये वाली जो लेयरिंग है, आई विल शो इन द डायग्राम इन अ शॉर्ट वाइल, तो वहाँ पे जो है ये सर्कमफ्रेंशियल लैमेले सबसे पहले जो है डेवलप होता है। ओके अब ये सर्कमफ्रेंशियल लैमेले जो है, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इट इज डायरेक्टली जो है डीप टू द पेरियोस्टियम। ओके जो वाला आउटर सर्कमफ्रेंस है, जो आउटर सर्कमफ्रेंस है, आउटर सर्कमफ्रेंस मतलब जस्ट इनसाइड द पेरियोस्टियम, दैट इज कॉल्ड एज द आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले। okay, let me show you the diagram first. Right here we have, suppose we are talking about the compact bone, right? And here is the जो या ये जो है राइट हियर, ये जो है ये ऊपर, तो ये जो है इट इज द शाफ्ट ऑफ द लॉन्ग बोन, डायाफाइसिस ऑफ द लॉन्ग बोन, राइट? अब डायाफाइसिस मैंने आपको कहा है कि जो एपिफाइसिस होता है वहां पे दैट इज जो मेजरली बना हुआ होता है, दैट इज मेजरली मेड अप ऑफ स्पॉन्जी बोन। और जो डायाफाइसिस होता है, डायाफाइसिस का पेरियोस्टियम के अंदर वाला जो हिस्सा है, जो सबसे मजबूत हिस्सा होता है बोन में, दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। ओके और फिर जो है जो मेडुलरी कैविटी है, मेडुलरी कैविटी के सराउंडिंग में भी स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होती है, लेकिन जो मेजर पार्ट ऑफ शाफ्ट या डायाफाइसिस होता है दैट इज मेड अप ऑफ कॉम्पैक्ट बोन। यू कैन सी हियर वी हैव कट जो है ए सेक्शन ऑफ ए लॉन्ग बोन, और वहां पे यू कैन सी जो आउटर वाली एक रिंग आपको ऊपर नजर आ रही है, दैट इज कॉम्पैक्ट बोन, एंड अंदर से जो छोटे छोटे डॉट्स आ रहे हैं आपको नजर अराउंड दी मेडुलरी कैविटी, दैट इज दी स्पॉन्जी बोन। ओके तो वहां पे जब हम देखते हैं इस सेक्शन को, इस सेक्शन को जब हम अंडर माइक्रोस्कोप देखते हैं तो वी सी ए स्ट्रक्चर, वन सेकेंड, वी सी ए स्ट्रक्चर समथिंग लाइक दिस, राइट? एंड मैंने आपको कहा कि जो ये कॉम्पैक्ट बोन होता है, कॉम्पैक्ट बोन इज मेड अप ऑफ दीज लेयरिंग्स विच आर कॉल्ड एज लैमेले, एंड लैमेले में द फर्स्ट वन इज circumferential lamellae। ओके और circumferential lamellae मैंने आपको कहा कि इट इज जो है इट इज अराउंड द एंटायर आउटर एंड इनर circumference of the shaft। now here is the bone tissue, and right here is the outer circumference। okay this is the outer circumference, right? And here is the medullary cavity, here is the medullary cavity here, right here, this is the medullary cavity। okay and this medullary cavity के just बाहर, okay surrounding the endosteum, there is this circumference। I hope you are getting my point, right? First is जो है outer circumference just inside the periosteum, and then there is inner circumference just outside the endosteum। ओके अब इन दोनों सर्कमफ्रेंसेस में जो ये लेयर प्रेजेंट होता है ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन, दिस इज कॉल्ड एज जो है सर्कमफ्रेंशियल लैमेले। अब जो ये इनर वाला जो इनर सर्कमफ्रेंस में जो प्रेजेंट होता है दैट इज कॉल्ड एज इनर सर्कमफ्रेंशियल लैमेले, राइट हियर this one is called as inner circumferential lamellae, and their outside, one second, I need to erase all this। हाँ तो यहाँ पे you can see यहाँ पे जो है लेबल भी है ये, यहाँ outer circumferential lamellae is just inside the periosteum, and just outside the endosteum there is inner circumferential lamellae। अब इन दोनों को हम इन पेरियोस्टियम एंड एंडोस्टियम के बेस पे भी नाम देते हैं। पेरियोस्टियम के अंदर जो वाला सर्कमफ्रेंस होता है वहां पे जो लैमेले प्रेजेंट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज पेरियोस्टियल लैमेले, और एंडोस्टियम के बाहर जो लैमेले प्रेजेंट होता है दैट इज आल्सो कॉल्ड एज एंडोस्टियल लैमेले।
ओके, सो दिस इज अबाउट दी जो है सर्कमफ्रेंशियल लैमेले, एंड ये सर्कमफ्रेंशियल लैमेले जो है दे आर एक्चुअली connected to the periosteum. जो outer circumferential lamellae, usually outer circumferential lamellae, they are connected to periosteum by fibers. okay, ये fibers से connected रहते हैं. You can see here जो outer circumferential lamellae है, these are connected to the periosteum by these fibers which are called as Sharpie's fibers. Okay, they are called as perforating Sharpie's fibers. Fine, that is about the circumferential lamellae. Okay, then we will see the जो है second type of lamellae, that is the concentric lamellae. ओके, कॉन्सेंट्रिक लैमेले जो है ये एक्चुअली इसमें जो है जो बेसिक यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन होता है, ओके, जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कॉम्पैक्ट बोन होता है, दैट इज कॉल्ड एज द ऑस्टियन. ओके, अब ये ऑस्टियन जो है ये ही इस कॉन्सेंट्रिक लैमेले में प्रेजेंट होते हैं. ओके, एंड एन ऑस्टियन को हम कहते हैं हैवर्शन सिस्टम. ओके, लेट अस फर्स्ट सी द डायग्राम, then we will see about the osteon. Here is the diagram, and here you can see the concentric lamellae. okay, in between जो ऊपर जो है यहाँ पे जो सर्कल आपको नजर आ रहा है बीच में, that is made up of concentric lamellae, and इस concentric lamellae के बीच में there is a canal which is called as the central canal, और उस central canal में you can see the blood vessels, the arteries and veins, okay, which are present in those canals. okay, अब ये circle वाला जो area है that is called as osteon. okay, and compact bone is made up of so many osteons like that, right? अब ये osteon जो है इसी में होते हैं concentric lamellae, and इस osteon को हम कहते हैं Haversian system. fine, राइट. अब ऑस्टियन जो है ये सिलेंडर होता है ऑफ अ बोन, जनरली ओरिएंटेड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द बोन. ओके, जो लॉन्ग एक्सिस होता है, जो शाफ्ट होता है बोन का, उसके जो है ये पैरेलल होता है ऑफ द लॉन्ग एक्सिस. फाइन, मैं आपको बता दूं कि हाँ, this will be the long axis of the bone, right? This will be the long axis, और इसी long axis के parallel में ये osteons present होते हैं. it is not कि ये osteons ऐसे जो है side to side जो है ये osteons present होंगे. they will be present parallel to the long axis of the bone, right? हाँ, अब ये आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ दीज रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स विच आर कॉल्ड एज ऑस्टियंस, and these osteons are also called as the Haversian system. Now each osteon जो है it consists of concentric lamellae which are arranged around a central canal. फाइन, सेंट्रल कैनाल, जिस सेंट्रल कैनाल में मैंने अभी आपको डायग्राम में दिखाया ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, और उसी सेंट्रल कैनाल के अराउंड जो है दीज कॉन्सेंट्रिक लैमेले अरेंज्ड होते हैं. ओके, और उस सेंट्रल कैनाल को हम कहते हैं, जैसे हम ऑस्टियन को कहते हैं हैवर्शन सिस्टम, उस सेंट्रल कैनाल को हम कहते हैं हैवर्शन कैनाल. फाइन, अगर हम एक ट्री के जो ट्री को हम कट कर देते हैं तो वी फाइंड दोज रिंग्स, okay, which are called as growth rings of the tree. उन्हीं की तरह जो है ये concentric lamellae present होता है in the bone. Fine, these concentric lamellae, they are also the circular plates, okay, and these circular plates are of mineralized extracellular matrix of the increased diameter. Fine. and these जो extracellular जो ये matrix से जो ये circular plates होते हैं, they are surrounding a small network of blood vessels. जो central canal होती है, central canal में होते हैं blood vessels,
उसमें होते हैं lymphatics, उसमें होते हैं nerves. Okay, and all these blood vessels, lymphatics and nerves, they are located in the central canal, that is the Haversian canal, and around this canal there are these circular plates of mineralized extracellular matrix which are called as the concentric lamellae. Fine. अब ये जो ट्यूब लाइक जो यूनिट्स है, ऑस्टियंस जो होते हैं, ये जो ट्यूब लाइक जो यूनिट्स है बोन के, they generally form a series of parallel cylinders. Okay, they form in this shaft of the bone, they form the series of parallel cylinders in the long bones, and they tend to run parallel to the long axis. All these series of parallel cylinders, they जो है they run parallel to the long axis of the bone, as I have already told you. Fine. अब ये जो concentric lamellae होते हैं which are arranged in these plates or arranged in these rings around the central canal, in between these concentric lamellae are small spaces. Okay, small spaces होते हैं. मैं आपको ये जो है सेंड करता हूँ ग्रुप में बाद में ये डायग्राम, उसमें आप देख सकते हैं या आप बुक पे भी देख सकते हैं अपने. उस कॉन्सेंट्रिक लैमेले के बीच में जो है स्पेसेस होते हैं, एंड दो स्पेसेस आर कॉल्ड एज लैक्यूने. okay, they are called as lacunae. One is called as lacuna and many are called as lacunae. Okay, and these lacunae जो है they contain the osteocytes. Fine, they contain osteocytes. Fine. तो इसके बाद जो है we have the third type of lamellae which is called as interstitial lamellae. ओके, इंटरस्टिशियल लैमेले जो है ये ज्वाइन करता है एक्चुअली जो है एक ऑस्टियन होता है और दूसरा ऑस्टियन होता है. एक ऑस्टियन जो है उसमें कॉन्सेंट्रिक लैमेले होता है, दूसरे ऑस्टियन में भी कॉन्सेंट्रिक लैमेले होता है. अब इनके बीच में जो स्पेसेस होती है एक ऑस्टियन और दूसरे ऑस्टियन के बीच में, या एक कॉन्सेंट्रिक लैमेले और दूसरे कॉन्सेंट्रिक लैमेले के बीच में जो स्पेस होती है, वहां पे जो है प्रेजेंट होते हैं इंटरस्टिशियल लैमेले. ओके, एंड दीज इंटरस्टिशियल लैमेले जो है इनमें भी जो गैप्स होती है, स्पेसेस होती है, वहां पे भी उनको भी हम लैक्यूने कहते हैं, और वहां पे भी जो है उन लैक्यूने में ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, एक्चुअली दीज जो ये इंटरस्टिशियल जो लैमेले होते हैं, दे आर द फ्रेगमेंट्स ऑफ ओल्डर ऑस्टियंस. ओके, जो ऑस्टियंस होते हैं, ओल्डर ऑस्टियंस जो होते हैं, उनके जो फ्रेगमेंट्स होते हैं जो पार्शली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं ड्यूरिंग द बोन रीबिल्डिंग और जो है ग्रोथ या रीबिल्डिंग के दौरान जो है ये ऑस्टियन, जो ओल्ड ऑस्टियन है, दैट विल बी रीबिल्ड. राइट, अब रीबिल्डिंग के दौरान जो है वहां से जो है फ्रेगमेंट्स निकलते हैं फ्रॉम दैट ऑस्टियन, और वही फ्रेगमेंट्स जो है एक ऑस्टियन और दूसरे ऑस्टियन के बीच में जो स्पेस होती है वहां पे आ जाते हैं, विच आर कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल लैमेले. फाइन. इसके बाद जो है वी विल टॉक अबाउट द स्पॉन्जी बोन. ओके, स्पॉन्जी बोन जिसको हमने कैंसलस बोन भी कहा था, और इसको हम ट्रैबिक्यूलर बोन भी कहते हैं. फाइन. अब कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू के कंपैरिजन में जो स्पॉन्जी बोन टिश्यू होता है, इट डज नॉट कंटेन ऑस्टियंस. ओके, इसमें जो है ये ऑस्टियंस प्रेजेंट नहीं होते जो स्पॉन्जी बोन होता है, और स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है just around the medullary cavity and usually in the जो है epiphysis of the long bone, epiphysis of the long bone. And जो spongy bone जो होता है, it is present in the short bones, it is present in the flat bones, it is present in the irregular bones. Okay, लेकिन long bones के epiphysis में spongy bone present होती है. Diaphysis is majorly made up of compact bones. फाइन. इसमें जो है ऑलरेडी मेंशन्ड कि ऑस्टियन इस जो है स्पॉन्जी बोन या कैंसलस बोन में प्रेजेंट नहीं होता है. ओके, एंड स्पॉन्जी बोन टिश्यू जो है इट इज ऑलवेज लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द बोन, प्रोटेक्टेड बाय अ कवरिंग ऑफ कॉम्पैक्ट बोन. फाइन. देन इट कंसिस्ट्स ऑफ लैमेले दैट आर अरेंज्ड इन एन इररेगुलर पैटर्न. फाइन. जो
हमने कॉम्पैक्ट बोन में देखा था, वहाँ पे हमने जो लैमेले देखे थे, लैमेले आर अरेंज्ड इन ए रेगुलर पैटर्न। ओके, वो कॉन्सेंट्रिक लैमेले हो या वो जो है इंटरस्टिशियल लैमेले हो और या वो सर्कमफ्रेंशियल लैमेले हो, दे वर प्रेजेंट और ओरिएंटेड इन ए रेगुलर पैटर्न। लेकिन इसमें जो लैमेले होते हैं इस स्पॉन्जी बोन में, उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है। और उन इर्रेगुलर पैटर्न जो इनका होता है, इन लैमेले का होता है, that here in the spongy bone is called as trabeculae. Okay, that is called as trabeculae. And trabeculae जो है इसीलिए हम इस स्पॉन्जी बोन को कहते हैं ट्रैबिक्यूलर बोन। फाइन, ट्रैबिक्यूले आर दी जो है इरेग्युलर पैटर्न ऑफ दीज लैमेले इन द स्पॉन्जी बोन। फाइन, अब इन जो है ट्रैबिक्यूले के बीच में जो है स्पेसेस होती है, जो इनमें जो इरेग्युलर पैटर्न होता है लैमेले का, जिनको हम ट्रैबिक्यूले कहते हैं, उनके बीच में जो है स्पेसेस होती है जिनको हम कहते हैं ट्रैबिक्यूलर स्पेसेस, और उन्हीं स्पेसेस में प्रेजेंट होता है रेड बोन मैरो। ओके, जो स्पॉन्जी बोन होता है, स्पॉन्जी बोन हैज वन इंपॉर्टेंट फंक्शन, दैट इज द स्टोरेज ऑफ रेड बोन मैरो। और ये स्पॉन्जी बोन में जो ये लैमेले होते हैं, लैमेले आर नॉट अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न लाइक द कॉम्पैक्ट बोन, और इनमें जो इरेगुलर पैटर्न होता है लैमेले का, उन लैमेले के बीच में देयर आर स्पेसेस, या इरेगुलर पैटर्न जो लैमेले का होता है उनको हम कहते हैं ट्रैबिक्यूले, और ट्रैबिक्यूले के बीच में देयर आर स्पेसेस which are called as which are called as trabecular spaces, और उन spaces में जो है present होता है red bone marrow। फाइन, और इसके बाद जो है spongy bone tissue जो है, it make up the most of the interior bone tissue of short bone, flat bone, sesamoid bone और round bone and irregular जो है bones। In long bones it is present in the epiphysis, और जहाँ पे जो है रेड बोन मैरो स्टोर किया जाता है। मतलब स्पॉन्जी बोन में जो रेड बोन मैरो होता है, दैट इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द फंक्शन ऑफ हिमेटोपोइसिस। ओके, अब स्पॉन्जी बोन जो है, ये भी आपको याद रखना है, दैट इज इट इज ऑलवेज कवर्ड बाय a layer of compact bone for protection, right? अब जो है ये स्पॉन्जी बोन और जो ये कॉम्पैक्ट बोन है, ओके, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन के बीच में देयर आर टू मेजर डिफरेंसेस। ओके, स्पॉन्जी बोन और कॉम्पैक्ट बोन में देयर आर टू मेजर डिफरेंस। फर्स्ट इज दैट स्पॉन्जी बोन टिश्यू इज लाइट। ओके, जो स्पॉन्जी बोन टिश्यू होता है वो, उसका जो वेट होता है ज़्यादा नहीं होता है, and this lightness of this spongy bone, it reduces the overall जो है weight of the bone। फाइन, अब ये जो इस स्पॉन्जी बोन की वजह से जो पूरी बोन में जो वेट कम होता है, उसकी वजह से जो है बोन जल्दी ही मूव कर पाती है व्हेन इट इज पुल्ड बाय द स्केलेटल मसल, और या जब हम इस बोन में जो है मूवमेंट करते हैं, तो मूवमेंट में हम जल्दी ही किसी जो है बोन को मूव कर पाते हैं, या हमारी स्केलेटल मसल्स बोन को जल्दी ही मूव करा पाती है। दैट इज बिकॉज ऑफ दैट लाइट वेट। अगर ये कॉम्पैक्ट बोन का भी वजन ज़्यादा होता, सॉरी स्पॉन्जी बोन का भी वजन ज़्यादा होता कॉम्पैक्ट बोन की तरह ही, तो बोन जो है उसका वेट ज़्यादा होता, तो इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल, या इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट फॉर द स्केलेटल मसल टू पुल द बोन। फाइन, सो स्पॉन्जी बोन का जो वेट होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू दी जो है कॉम्पैक्ट बोन। और जो सेकेंड डिफरेंस होता है, दैट इज द ट्रैबिक्यूले ऑफ द स्पॉन्जी बोन टिश्यू। ओके, इट जो है protect and it stores the red bone marrow। Fine, spongy bone, it protects it stores the red bone marrow, और compact bone में जो है red bone marrow store नहीं किया जाता है। Fine, so spongy bone is the site of hemopoiesis or hematopoiesis, that is the blood cell production that occurs in the spongy bone, not in the compact bone।
Fine. So these are the two major differences, important differences between the compact bone and spongy bone. So let's quickly revise. हमने कॉम्पैक्ट बोन में जो है और स्पॉन्जी बोन में देखा. कॉम्पैक्ट बोन में हमने देखा कि इट इज़ मेड अप ऑफ या इट कंसिस्ट्स ऑफ डिफरेंट लेयर्स विच आर कॉल्ड एज लैमिले, और दो लैमिले जो है दे आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, एंड देयर आर 3 known lamellae which are present in the compact bone. First is circumferential lamellae. Circumferential lamellae are present in the outer and inner circumference of the shaft, and outer circumference में जो present होता है that is called as outer circumferential lamellae, and that is also called as periosteal lamellae, and inner circumference में जो होता है that is called as inner circumferential lamellae, and that is also called as the endosteal lamellae. फाइन. अब ये लैमिले जो है, आउटर सर्कमफ्रेंशियल लैमिले जो है, इट इज कनेक्टेड विद द पेरियोस्टियम बाय फाइबर्स, स्पेशल फाइबर्स विच आर कॉल्ड एज शार्पीज फाइबर्स. देन सेकेंड इज जो है कॉन्सेंट्रिक लैमिले. कॉन्सेंट्रिक लैमिले जो है दे आर प्रेजेंट इन द ऑस्टियॉन्स, एंड ऑस्टियॉन्स आर द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द कॉम्पैक्ट बोन और द बोन. फाइन. अब ये ऑस्टियॉन्स में there is a central canal which is called as the which is also called as the Haversian canal, जिसमें blood vessels, lymphatics, nerves present होती है, and around this central canal there are different layers, many layers, ring shaped layers of these concentric lamellae. Okay, और इन lamellae के बीच में there are जो concentric lamellae जो है, इनके बीच में there are spaces which are called as lacunae, and lacunae में जो है there are osteocytes present. Fine. अब osteons के बीच में, और ये osteons जो है they are present parallel to the long axis of the bone, you have to remember this. Fine. And then osteons के बीच में जो spaces होती है, इन spaces में third type of lamellae present होता है which is called as interstitial lamellae, and these interstitial lamellae they are actually the fragments of osteons जो है osteons के rebuilding या growth के दौरान जो है वो fragments अलग होते हैं, which are there present there in the spaces which are called as interstitial जो है lamellae. इसके बाद हमने देखा spongy bone, और spongy bone में लैमिले प्रेजेंट होते हैं, लेकिन लैमिले जो प्रेजेंट होते हैं उनका कोई रेगुलर पैटर्न नहीं होता है इंटरस्टिशियल, सर्कमफ्रेंशियल, कॉन्सेंट्रिक की तरह. इनका जो है जो लैमिले इसमें प्रेजेंट होते हैं दे आर प्रेजेंट इन द इरेगुलर पैटर्न. अब ये इरेगुलर पैटर्न में जो ये लैमिले स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होते हैं दे आर कॉल्ड एज जो है ट्रैबिक्यूले, और इन ट्रैबिक्यूले को ही जो है जो स्पॉन्जी बोन में प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हम स्पॉन्जी बोन को और एक नाम देते हैं, वी कॉल देम एज ट्रैबिक्यूलर बोन. फाइन. अब इसमें जो है ट्रैबिक्यूले के बीच में देयर आर स्पेसेस. ओके, जो डिफरेंट ट्रैबिक्यूले है इस स्पॉन्जी बोन में, इनके बीच में देयर आर स्पेसेस, एंड दो स्पेसेस आर प्रेजेंट देयर फॉर द रेड बोन मैरो. ओके, इसीलिए स्पॉन्जी बोन जो है दैट is the site of storage for the red bone marrow, and spongy bone is actually the site for the hematopoiesis or hemopoiesis, that is the production of blood cells. Fine. अब ये spongy bone जो है it is present in the epiphysis of the long bones. Okay, and a little जो है spongy bone is present just outside the surrounding the medullary cavity. Okay, और उसके बाद जो है the spongy bone is present in the short bones, it is present in the irregular bones, it is present in the flat bones, it is present in the जो है sesamoid bones. Fine. Then we have seen there are two major differences between the compact bone and स्पॉन्जी बोन. स्पॉन्जी बोन जो है उसका जो वेट होता है वो लाइट होता है, दे आर लाइट वेटेड, और जिसकी वजह से इट इज़ ईजी फॉर द स्केलेटल मसल्स टू पुल द बोन ड्यूरिंग द जो है ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ द बोन. फाइन. और दूसरी जो डिफरेंस होती है दैट इज स्पॉन्जी बोन. एज ऑलरेडी टोल्ड, स्पॉन्जी बोन के जो ट्रैबिक्यूले होते हैं उनके बीच में जो स्पेसेस होती है
उन स्पेसेस में जो है रेड बोन मैरो प्रेजेंट होता है. सो स्पॉन्जी बोन इज द साइट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, साइट फॉर द हेमाटोपोइसिस. ओके, तो इसके बाद जो है देयर इज ब्लड सप्लाई टू बोन्स. ओके, और जो वोवन बोन्स होती है, वोवन बोन्स, उनमें जो है देयर इज नथिंग मच टू स्टडी. और वोवन बोन्स जो है दे आर एक्चुअली न्यूली फॉर्म्ड बोन्स, इसीलिए वो अभी मैच्योर नहीं होती है, तो इसीलिए हम उनको कहते हैं इमैच्योर बोन्स. ओके, उनमें जो है लैमेलर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट नहीं होते हैं, और जो कोलेजन फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं उनमें वो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं, बंडल्स में प्रेजेंट होते हैं जो वोवन बोन्स होते हैं. और वो कोलेजन फाइबर्स जो है जो रैंडमली प्रेजेंट होते हैं वो दे आर काइंड ऑफ इंटरलेसिंग ईच अदर, और वो एक वोवन टाइप स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसकी वजह से हम इनको कहते हैं वोवन बोन्स और इमैच्योर बोन्स. फाइन, जो आपको जिस पे आपको ज़्यादा फोकस करना है दैट इज दिस स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन. Fine. Then there is blood supply to bones. Blood supply to bones actually come from 3 sources. इनको हम डिटेल में आज डिस्कस नहीं करेंगे, विल डिस्कस देम इन नेक्स्ट क्लास. तो 3 सोर्सेज आर न्यूट्रिएंट आर्टरी सिस्टम. ओके, न्यूट्रिएंट आर्टरी सिस्टम जो बोन के अंदर जाते हैं थ्रू द न्यूट्रिएंट फोरामेन, जो हम देखेंगे. और फिर है दूसरा सिस्टम जो है दैट इज मेटाफिशियल एंड एपिफिशियल सिस्टम. आई एम सॉरी, यहाँ पे मैंने मेटाफिजिकल लिखा है, इट इज द टाइपिंग मिस्टेक. इट इज मेटाफिशियल एंड एपिफिशियल सिस्टम. Okay, and the third is periosteal system. Okay, so blood supply to bone comes from 3 sources. First is the nutrient artery, which is the major supply actually, nutrient artery system. Second is metaphyseal and epiphyseal system, and third is periosteal system. Okay, and about all these 3 sources we will discuss in the next class along with the development of the bone, inshallah. That is ossification of the bone. Fine. Okay, any question up to now?